اعتزاز نقی ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دیکھیے جہاں زیب علی کی رپورٹ۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بھنڈی 130 روپے کلو، عربی 150 روپے فی کلو، ٹماٹر، آلو اور پیاز کے علاوہ پھلوں میں کیلے 100 روپے درجن، خوبانی 200 روپے کلو، آلو بخارے 320 روپے کلو تک قیمتیں سن کر غریب آدمی خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوشت کھانا تو دور کی بات، اب سبزی بھی کھانا مشکل ہو گئی ہے۔ ہر چیز سبزی مہنگی جا رہی ہے، غریب آدمی کے پوچھ سے دور ہے، غریب آدمی کھا ہی نہیں سکتا سبزی لے کے۔ اسے فروٹ ہیں جیسے آلو بخارا ہے، اب تو یہ بالکل ہی ایسا ہو گیا کہ سونے کے دام۔ اب 320 روپے کلو آلو بخارا، وہ بھی کوالٹی وائز اتنا اچھا نہیں ہے، کیا بچوں کو لے کے جائیں؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے ہی کاروبار اتنے ٹھپ ہوئے ہیں۔ غریب عوام جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے اس کا روزمرہ کی اشیاء خریدنا، حکومت اس پہ کنٹرول کرے۔ شہریوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے غریب کی ایک وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ پورے سال نظر ہی نہیں آتی ہیں جو ان منافع خوروں کے خلاف کارروائی کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ حیدرآباد شہر میں منافع خور سبزی اور پھل فروشوں کے خلاف کارروائی کر کے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی لا کر عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز، حیدرآباد۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پھل، سبزیوں، گوشت سمیت دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ محسن سلیم کی رپورٹ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے۔ سبزیاں، پھل سمیت روزہ مروزہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے غریب عوام کی قوت خرید سے باہر ہے۔ مہنگائی کی لہر نے سفید پوش ملازمین سمیت غریب عوام میں سخت پریشانی اور مایوسی دو چار کر دیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سٹی سمیت دیگر علاقوں میں سبزیاں، پھل، دودھ، دہی اور گوشت، انڈے سمیت دیگر اشیاء خورد نوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ خصوصی ٹماٹر کی اڑان آسمانوں تک پہنچ گئی ہے۔ مختلف پھل، سبزیاں، آلو اور پیاز، ٹماٹر سمیت دیگر قیمتیں بھی غریب عوام کی قوت سے باہر ہیں۔ دوسری جانب انتظامیہ نے چپ سانس لے رکھی ہے اور مہنگائی کے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے ہیں، جبکہ دکانداروں نے بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ سیاسی و سماجی اور عوامی حلقوں نے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرامین افراد سے آپ کے ساتھ محسن سلیم، سائٹ ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔ پشاور میں ٹماٹر کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ شہری کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مہنگائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ریلیف کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ عید سے پہلے جو ٹماٹر آئے ہوئے ہیں یہ کافی اس کو پر لگ گیا ہوا ہے، جس طرح پیاز ٹماٹر بھی کافی مہنگا ہو گیا، 80 روپے کلو پہ روک تو رہا ہے۔ یہ غریب عوام کے بس کے کام نہیں ہے۔ عید آنے والی ہے تو یہ اور بھی مہنگا پڑ گیا، تو ضرورت بھی زیادہ پڑ گئی ہے ٹماٹر کی۔ حکومت کو چاہیے کہ ٹماٹر کو اور بھی سستا کرے۔ ٹماٹر تقریباً ایک ہفتے پہلے 40-50 پہ تھے اور اب 100-120 پہ مل رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ جمپ ہے، بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں، یہ اس کو جو ہے ڈیلی لائف کے جو زندگی ہے وہ بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ تو ٹھیک بات ہے۔ یہ ایک مہینے سے یہی ریٹ چل رہا ہے، ٹماٹر کو مہنگا کیا ہوا ہے انہوں نے اور ریٹ بڑھائے ہوئے عید کے آنے سے پہلے ہی، اور اس کے علاوہ اور بھی سبزیاں مہنگا ہوا ہے۔ اور یہ تو عید و قربان میں یہ ٹماٹر بہت یوز ہوتا ہے، اس کا یوز زیادہ ہوتا ہے۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کا بحران شدید ہو گیا۔ بدترین لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے۔ کراچی والے 10 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ گئے، لیکن حکومت خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ نوٹس پر نوٹس لیکن عمل درآمد صفر۔ وزیر اعظم کی جانب سے شہر اقتدار میں بجلی کی طویل بندش پر نوٹس لینا بھی کسی کام نہ آیا کہ الیکٹرک کے کانوں پر جوں نہ رینگی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات بھی کئی گھنٹے بجلی غائب رہی۔ کراچی میں کہیں 8 تو کہیں 12 گھنٹے بجلی غائب ہونے کی وجہ سے شدید گرمی میں شہریوں کو دن میں چین ہے اور نہ رات میں سکون۔
कराची में कुरंगी, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, मलीफ, लियारी, लांडी, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर का कोई इलाका इस वबाल से महफूज नहीं। शहरियों का कहना है कि इन्हें अब तक इस आफत से रिलीफ नहीं मिल सका। शहरी इक़्तिदार का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। शहरी और दई इलाकों में घंटों बिजली बंद होना मामूल बन गया। मुरम्मती काम का बहाना अलग बनाया जाता है। शहरियों की शिकायत सुनने को कोई तैयार ही नहीं। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में आवाम की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। लाहौर और पेशावर में भी लोड शेडिंग अरूज पर है। दीगर शहरों की तरह कमालिया में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में वक्फे से गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी के सताए हुए शहरी गम और गुस्से का शिकार हैं। शहरियों का कहना है सुबह से बिजली नहीं है, 7 बजे से लेकर 11 बजे से बिजली नहीं है। कल शाम 7 बजे से गई, रात 10 बजे आई है। बड़ा बुरा हाल है, बच्चे परेशान हैं, पानी की वजह से बुरा हाल है, बिल्कुल जानवर प्यासे हैं। बिजली की लोड शेडिंग गैर एलानिया हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, कभी घंटा बगैर एलानिया हो रही है। गर्मी से बुरा हाल है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली जारी है, जिससे न सिर्फ कारोबार बंद है बल्कि शदीद गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। 1 घंटा बिजली आती है और कई घंटे बिजली गायब रहती है, जिससे न सिर्फ शहरी शदीद परेशान है बल्कि किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि आला अफसरान से अपील है कि गर्मी शिद्दत से पड़ रही है, मेहरबानी फरमाकर गैर इलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज़ टीवी, कमालिया। जैकबाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। बिजली की बंदिश के बायस पीने के पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। जानिए दोस्त मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में सूरज सवा नेज़े पे आ गया। गर्मी का दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी तजावज कर गया। गर्मी में आए रोज इजाफे के बावजूद सेपको की जानिब से 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके बायस शहरी दौर अजाब में मुब्तला हो गए हैं। बिजली के तातुल के बायस एक तरफ तो कारोबारी जिंदगी मुतासिर है तो दूसरी जानिब मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुअत्तल है। गर्मी और बिजली के सताए शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम में फैली बेचैनी खत्म की जाए। कैमरा मैन नया सुमर के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां अरूज पर पहुंच गई। मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं, जिससे शहरी और मुसाफिर परेशान हैं। राव फखरुज्जमान की रिपोर्ट। आए रोज बढ़ती महंगाई से जहां दीगर तबकात परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, किरायों में कमी ना की गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टरों ने अपने मन मर्जी के रेट तय कर लिए। इसी हवाले से मुसाफिरों का कहना है, जैसे पेट्रोल की कीमतें कम हुई, हुकूमत ने, ट्रांसपोर्टर्स ने किराया कम नहीं किया, लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हुई तो ट्रांसपोर्टर हजरात ने किराया डबल कर दिया, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। और हमारी हुकूमत से ये अपील है कि किरायों की कमी का ऐलान किया जाए और इस पर अमल दरामद भी करवाया जाए, ना कि सिर्फ बातों तक रखा जाए। और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। कोरोना की वजह से हालात सब परेशानी है। जहाँ पर 500 रुपये किराया लगता था वहाँ पर 1000 रुपये लगते हैं। जी, शहरियों का यही कहना है कि जब पेट्रोल के रेट सस्ते किए गए थे तो किराए में कोई कमी ना की गई। जैसे पेट्रोल महंगा हुआ तो किराए में भी 2 गुना इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि न सिर्फ किरायों में कमी की जाए बल्कि इस पर अमल दरामद भी कराया जाए, ताकि उन्हें सफरी सहूलियात मुयसर आ सकें। कैमरा टीम के हमरा फखरुज्जमान, नुमाइंदा, सच न्यूज़ का रोड पक्का। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डी दल के हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डियों के लश्कर भगाने में मसरूफ हैं। कोरोना से जान छूटी न थी कि एक और आफत आन पड़ी। मुल्क में टिड्डी दल के हमलों में कपास, मिर्च की फसलों और आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। कहीं तो इस लश्कर ने किसानों की साल भर की कमाई को चट कर दिया है। चारों सूबों में टिड्डी दल ने तबाही फैला रखी है। दरख्त टंड मंड हैं तो फसलों का नामो निशान नहीं रहा। सिंध के जिला नवाबशाह में टिड्डी दल के हमले से कपास, गन्ना, ज्वार और प्याज की फसल को नुकसान हुआ। थर पारकर में भी टिड्डी दल ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ दरख्त मुतासिर हुए। तमाम मकामी अफराद आज खुद टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। थर पारकर के रिहायशियों ने हुकूमत से मुतासरा इलाकों में स्प्रे करने का मुतालबा कर दिया। NDMA का कहना है कि मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल के हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तमाम सरकारी सतह पर टिड्डी दल के खिलाफ स्प्रे मुहिम जारी है। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 10, पंजाब 4 और सिंध में
7 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हुए हैं। हुकाम का कहना है कि 1128 टीमें लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,50,000 एकड़ रकबा का सर्वे हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 4,900 एकड़ रकबे का टेडी मार अद्वियात से ट्रीटमेंट किया गया है। बलूचिस्तान में 3,200 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया और पंजाब में 100 एकड़ पर स्प्रे किया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 1,000 एकड़ रकबे की ट्रीटमेंट हुई है, जबकि सिंध में गुज़िश्ता रोज 600 एकड़ रकबा ट्रीटमेंट किया गया। NDMA ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में 4,97,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। मक्के की फसल के इमदादी रेट मुकर्रर न होने से पंजाब की गला मंडियों में मक्के का रेट 1,400 रुपए फी मन से कम होकर 700 रुपए फी मन रह गया, जिससे किसानों को 25,000 फी एकड़ पैदावार में खसारे का सामना है। चौधरी तारिक अली की रिपोर्ट। पंजाब में मकई की फसल कटाई के बाद गल्ला मंडियों में पहुंच गई, मगर हुकूमत की जानिब से मकई के इमदादी रेट मुकर्रर न होने पर फसल का रेट 1,400 रुपए फी मन से कम होकर 700 रुपए फी मन रह गया। सूबाई सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल ने हुकूमत से मकई के इमदादी रेट मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर मकई की इमदादी कीमत का ऐलान करे और किसानों को जो नुकसान हुआ उसका अदाला करे, वरना किसान एहतजाज पर मजबूर होंगे। गल्ला मंडियों में मकई के रेट कम होने से किसानों को 25,000 फी एकड़ पैदावार में खिसारे का सामना है। मक्की का रेट जो है वो 600 रुपए से लेकर 750 रुपए तक चल रहा है। हुकूमत को चाहिए इसकी फौरी तौर पर इमदादी कीमत मुकर्रर करे ताकि किसान के जो कम से कम अखराजात हो रहे हैं वो तो पूरे हो जाएं। किसानों का कहना है कि गल्ला मंडियों में मकई की गिरती कीमतों से उनकी फसल पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हुए। हुकूमत मकई के इमदादी रेट मुकर्रर करने का ऐलान करे। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। पेशावर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा होने लगा, जबकि सूबे भर में वैक्सीन भी न होने के बराबर है, जिसके बायस शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। अवैस महमूद की रिपोर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आवारा कुत्तों का राज बरकरार। आए रोज कुत्तों के काटने के वाकयात सामने आने लगे, जिसकी वजह से शहरियों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। ये मेरे साथ तकरीबन 1 हफ्ता पहले गुजरा है और मैं इधर गुलबाग नंबर 4 में रहता हूँ बेटा, और वहाँ पे तकरीबन 7 कुत्ते हैं। जहाँ एक तरफ कुत्तों के काटने का खौफ सर पर मंडला रहा है, तो वहीं पर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन न होने के बराबर है, जिसका शिकवा शहरी भी करते हुए नजर आते हैं। कि रात के औकात में 5 से 12 कुत्ते यहाँ पे फिरते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर वो काट लें, वैक्सीन्स भी ख़त्म हो चुकी हैं और इधर उधर आस पास भी नहीं मिल रही, तो जिसकी वजह से अवाम को बहुत परेशानी है इस पर। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल में कुत्तों के काटने की वैक्सीन वाफर मिकदार में मौजूद है। एंटी रेबीज वैक्सीन जो डॉग बाइट वैक्सीन आप कह रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है। अभी इस टाइम हमारे पास 1000 वाइल्स पड़ी हैं। थोड़ा सा डेटा मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो 350 से लेकर 400 के दरमियान डॉग बाइट्स आती हैं हर महीने LRH में। पेशावर की सबसे बड़ी अस्पताल रीडिंग अस्पताल में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन मुज़ाफ़ाती इलाकों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने से वहाँ की अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अवैस महमूद, सच टीवी, पेशावर। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला नेपरा में होने वाली समाअत के बाद एक्शन कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया गया। कमेटी के अराकीन फौरी तौर पर कराची जाकर मामलात की इंक्वायरी करेंगे। नेपरा के मुताबिक कमेटी के सरबराह DG मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट होंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान चौधरी, एक्शन कमेटी 10 रोज में नेपरा को रिपोर्ट पेश करेगी। जी बिल्कुल, कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला है और आज पब्लिक हियरिंग हुई थी नेपरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। तकरीबन 5 घंटे की समाअत के बाद जो है वो नेपरा अथॉरिटी की जानब से तमाम तजावीज़ और हक़ाइक़ का जायजा लेने का कहा गया था और उसके बाद जो है फैसला करने का बताया गया था। और अब बाकायदा तौर पर नेपरा की जानब से जो है फैसला किया गया है। 4 रुकनी जो है वो माहिरीन पर मुबनी एक टीम बना दी गई है। एक्शन कमेटी का नाम दिया गया है। ये टीम के अरकान जो है वो फौरी तौर पर कराची जाएंगे, वहाँ पे जाके मामले की छानबीन करेंगे कि इलेक्ट्रिक हुकाम से मिलेंगे। इसके अलावा कराची के शहरियों से राय लेंगे और उसके बाद जो है वो कमेटी अगले हफ्ते के अख्ताम तक जो है वो जामे रिपोर्ट बनाकर जो है वो सिफारिशात भेजेगी नेपरा अथॉरिटी को। नेपरा उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा तौर पर फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी।
वेलकम बैक। लिया के तारीखी शहर पीर जुगी शरीफ में 35 साल कबल बनाई जाने वाली डिस्पेंसरी को न तो अपग्रेड किया गया बल्कि ताले लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। तारीखी शहर पीर जगी शरीफ की वह डिस्पेंसरी 1985 में बनाई गई थी। 3 दहाइयां गुजरने के बावजूद ये डिस्पेंसरी को न तो अपग्रेड किया गया, न ही इसकी बिल्डिंग दोबारा बनाई गई, बल्कि 4 दीवारी तक न बनाई गई। इन 3 दहाइयों में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी ना यहाँ पहुँच सका, बल्कि मौजूदा अमला भी दूसरे इलाकों में ट्रांसफर करके डिस्पेंसरी को ताला लगा दिया गया, जिसकी वजह से मरीज इमरजेंसी की सूरत में 20 किलोमीटर दूर THQ अस्पताल को सुल्तान का रुख करते हैं या फिर 40 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया की राह लेते हैं। बाज़ औक़ात कई मरीज तवील सफर की वजह से रास्ते ही में दम तोड़ देते हैं। न इसकी बिल्डिंग बनाई गई और न ही इसको अपग्रेड किया गया। हमारे बाज़ औक़ात इमरजेंसी की सूरत में हमें या तो कोट सुल्तान जाना पड़ता है या फिर लिया का रुख करना पड़ता है, और लंबे सफर की वजह से बाज़ औक़ात मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इंसानी जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, लेकिन जमीनी खुदाओं ने इसे भी दुश्वार बना दिया है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। कसूर की सब तहसील चूरिया में डिस्पेंसरी जमशेद खुर्द में सहूलियात का फुकदान है। न डॉक्टर हैं न ही अतपियात, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। जूनियर रूरल डिस्पेंसरी जमशेद खुर्द में सहूलियात का फुकदान है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सहूलियात न होने के बाद मरीज अताइयों के हाथों लुटने पर मजबूर। हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए फंड तो आते हैं, मगर कहाँ लगते हैं कुछ पता नहीं। यहाँ पर किसी भी मर्द का ना सिरप और ना कोई इंजेक्शन लगाया जाता है और ना कोई यहाँ पर MBBS डॉक्टर मौजूद है। जब भी कोई हादसा होता है यहाँ पर फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं लिया था। हुकूमत से हमारी अपील है कि यहाँ पर डॉक्टर और मेडिसिन का इंतजाम किया। रिक्वेस्ट है कि सानू इतने ना मेल तकरीबन एक डॉक्टर दिता जाए। इलाका की वजीर आज़म इमरान खान और वजीर सेहत से अपील है कि यहाँ पर मेल और फीमेल डॉक्टर और अदूजात मुहैया की जाए ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न हो। कैमरा टीम के साथ फयाज महमूद, सच TV चूनिया। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में मुताद्दिद अफराद जान की बाजी हार गए। तेज रफ्तारी और ड्राइवर्स की गफलत हादसात का सबब। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। मनकेरा में जंग बक्कर रोड पर ट्रक की रक्शे को टक्कर एक शख्स जाँ बहक हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कसूर में दीपालपुर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ट्रालर की जद में आ गया। हाफसाबाद में तेज रफ्तार कार ने 3 अफराद को कुचल डाला। खैरपुर में गंबड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर मुसाफिर जाँ बहक हो गया। लोअर दीर में तेमर गरा बाईपास पर ऑयल टैंकर मोटरसाइकिल से टकराने के बाद खाई में गिर गया। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। वाकया टैंकर की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पीर दादन खान में रेलवे फाटक पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान के इलाके जाहिर पीर की अहम और मरकजी शाहरा चाचना रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं गफ्फार रशीद। जाहिर पीर की अहम और मरकजी शहरा चाचना रोड टूट फूट का शिकार हो गई है और जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। ये पहले सिंगर रोड थी। काफ लीग के दौरे हुकूमत के शुरुआत में शहरियों की सहूलियात के लिए इसको अपग्रेड करके 2 रवैया कारपेट रोड बनवाई गई। काफी अरसा ये रोड कारआमद साबित हुई, लेकिन पिछले चंद सालों के दौरान इसकी हालत अबतर हो गई है। इसकी बुनियादी वजह चाचना शरीफ दरियाए सिंध के मकाम पर 2 अजला को मिलाने के लिए पुख्ता पुल तामीर किया गया, मगर इससे मुंसलिक बेनजीर रोड ताखीर से मुकम्मल हुआ। लेकिन इस पुल को भारी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जिनका गुजर इसी रोड से हुआ, जिसकी वजह से ज़ाहिर पीर की ये अहम शहरा खस्ता हाली का शिकार हुई। सड़क टूट फूट का शिकार है। आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। हुकूमत से अपील है कि इसको जल्द बनाया जाए ताकि शहरियों को कोई मसाइल ना हो। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि इस 2 रवैया सड़क को जल्द मुरम्मत करके बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर की जाएं। कैमरा टीम के हमरा गफ्फार रशीद, सच न्यूज, जाहिर पीर। दर्जनों देहातों को ठुल हफ्जा से मिलाने वाली अहम सड़क निजामाबाद अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। दर्जन भर से ज्यादा देहात को ठुल हमजा से मिलाने वाली अहम सड़क निजामाबाद अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। हुकूमती नुमाइंदे खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ ने मजीद बताया कि ऐसी सड़क सारी 2010 तो बढ़ी ही हूँ तो बाद कोई नहीं बढ़ी, त्रुट गई है सारी। इतने 2-2 किलो के पत्थर हैं। मोटरसाइकिल जना लंघ दे तो टायर तले आवे तो बंदा ही ढह पाते।
मरीज का मसला बढ़ता, मरीज नहीं पिछू बह सकता, कई बार बंदे डटे नहीं था, बड़ा मसला है सड़क का, सड़क काफ़ी अरसे त्रुटी हुई है, कोई नहीं थी देखभाल कराने वाला, तो मेहरबानी की वजह सड़क की मुरम्मती या मुकम्मल बड़ी वजह बड़ा मसला है सारे वास्ते। अहलियान इलाका ने तब्दीली सरकार से मतलबा किया है कि सड़कों की दोबारा से तामीर नौ की जाए। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी टोलमजा। ओकाड़ा में रेलवे इंतजामिया ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की धज्जियां उड़ा दी। रेलवे ट्रैक के करीब हरे भरे दरख्तों को जड़ से काट कर फेंक दिया। ओकाड़ा में रेलवे इंतजामिया की जानिब से वजीर आजम इमरान खान की मुहिम क्लीन एंड ग्रीन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यहाँ ओकाड़ा में रेलवे ट्रैक के साथ साथ बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बगीचे लगे हुए थे जो अरसा दराज से यहाँ पर कायम है। यहाँ के इलाका मकीनों को इन दरख्तों से एक तरफ तो साया मुहैया होता था, दूसरी तरफ ये बहुत ही अच्छी आबो हवा का मरकज थे। रेलवे इंतजामिया नूं चाहिए कि दरख्तों का कतल जिहड़ा कर रही है बंद किया जाए। एडे एडे मोटे एडे भारे दरख्त जिहड़े अज तो 20-20 साल पुराने दरख्त ने वो कटे जा रहे हैं। अगर ये दरख्त जो रेलवे ऑर्डर दे विच आंदे ने तो उन्होंने छांगिया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि भी ऑर्डर नजर नहीं आता तो दरख्त काट दिता जड़ा दे उत्तों। करोड़ां अरबां रुपए खरबां रुपए जिहड़ा हुकूमतां जिहड़ियां दरख्तां लगाउण ते लांदियां ने ते रेलवे इंतजामिया जिहड़े दरख्त कटा रही है, लिहाजा जुल्म और कत्ल जड़ा दरख्तों का बंद किया जाए। उकाड़ा की आवाम ने इन दरख्तों के कत्लेआम पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए वजीर आजम इमरान खान से ये अपील की है कि दरख्तों का कत्लेआम फिलफौर बंद करवाया जाए और इन महकमे में जो भी इस काम में मुलविस है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ शाहिद खोखर, सच न्यूज, उकाड़ा। लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले मूवी मेकर्स फोटोग्राफर एसोसिएशन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली कॉमर्स कॉलेज से शुरू होकर कमिश्नर ऑफिस से इख्तिताम पजीर हुई। बाबर सिद्दीकी की रिपोर्ट। फोटोग्राफर एंड मूवी एसोसिएशन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली कॉमर्स कॉलेज से शुरू होकर कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो कैटरिंग वाले, लाइटिंग वाले, साउंड वाले, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए लोग, इनका कोई ख्याल करो। हमारा रोजगार बहाल करो, हमारा माशी कत्ल बंद करो। हम लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं और 3 माह से शादी हाल बंद होने से हमारा रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4 माह हमने भूख, प्यास और जो तकलीफ से काटे हैं, ये हमें पता है, ये हमारे खुदा को पता है। मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जल्दी हो सके ये 1 अगस्त से पहले इसको बहाल किया जाए शादी हाल वालों को। जिस तरह हुकूमत ने बाकी कारोबार एसओपीज के तहत खोले हैं, इसी तरह शादी हाल्स को भी एसओपीज के तहत खोलें ताकि हमारा रोजगार बहाल हो सके। बाबर सदीकी, सच न्यूज, साहिवाल। कोरोना लॉकडाउन के बायस शादी हॉल्स, लाइटिंग और साउंड सिस्टम के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। 4 माह से कारोबार बंद होने के बायस नौबत फाकों तक पहुंच गई। इम्तियाज हुसैन से मजीद जानते हैं। जी इम्तियाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मुसलसल 4 माह से जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो पूरे मुल्क समेत जो टंडोलियार में जारी है, टंडोलियार में जो दीगर शोबाजात जहां मुतासर है वहां पर शादी हाल, इको साउंड और लाइटिंग सिस्टम लगाने वाले जो अफराद हैं वो भी शदीद मुतासर हैं। 4 माह से जो है फाका कशी पर मजबूर है। अभी हम इस वक्त जो है शादी टंडोलियार के एक शादी हाल के बाहर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि शादी हाल को मुकम्मल तौर पर ताले लगे हुए हैं और शादी हाल के मालकान समेत मजदूर तबका जो है शदीद परेशान है 4 माह से। अभी इस वक्त जो है हमारे साथ जो है एक मालिक, जो शादी हाल मालिक जो है हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल है और 4 माह से कितना जो वो परेशान है। जी आप बताएंगे कितने परेशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग 4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। 4 महीने हो गए शादी हाल बंद पड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस से हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि 4 माह से गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई इमदाद नहीं मिली है। 4 महीने से हमारे मजदूर फाका कशी का शिकार हैं। तो लिहाजा हम अपील करते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि जिस तरीके से दीगर शहरों में मार्केटें खुल गई हैं, बाज़ार खुल गए हैं SOPs के मुताबिक, तो हम गुजारिश करते हैं कि शादी हाल भी खोले जाएँ ताकि हम और हमारे मजदूर दोबारा से अपना रोजगार शुरू कर सकें। जी जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि जहाँ दूसरे दीगर कारोबार जो SOPs के तहत खोले गए हैं वहीं पर जो है शादी हाल भी SOPs के तहत जो है खोले जाएँ ताकि इनके मजदूर तबका जो है वो मजीद फाका कशी से बच सके। जी
बहुत शुक्रिया इम्तियाज हुसैन। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना थी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जोब, बारखान, लोरालाई और मुसाखिल में बारिश की तवक्को है। पंजाब, अटक, जेहलम, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, टेक्सला, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, सरगोधा, बियावाली, खुशाब और फैसलाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। लिया, भक्कर, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर में आंधी चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिंध सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कराची, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और मिट्टी में हल्की बारिश का इम्कान है। कोरोना वबा के दौरान पुलिस का किरदार हरावल दस्ते का रहा। जब तमाम दफातर बंद रहे, पुलिस स्टेशन और डीपी ऑफिस खुले रहे, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ अमन अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारियां भी निभाई जाती रहीं। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। अमन हो या जंग, कुदरती आफत हो या कोई वबा, वाहिद इदारा पुलिस ही है जिनके फराइज में कभी वक्फा नहीं आया। कोरोना वायरस जैसी जानलेवा वबा में पुलिस एहलकारों ने फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। लोगों में आगाही पैदा करना हो या समाजी फासला बरकरार रखवाना या हो लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने की बारी, पुलिस ने अपने फराइज बखूबी इंजाम दिए। जब वबा के खतरा के पेश नजर तमाम सरकारी इदारों को बंद कर दिया गया तो पुलिस स्टेशन खुले रहे, सर्विसेज भी जारी रही, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी रही। कोविड-19 की जो क्राइसिस है 21 मार्च से स्टार्ट हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ताला लिया पुलिस और पंजाब पुलिस अपनी तमाम रूटीन के जो मामूलात हैं उसके साथ साथ हमने कोविड-19 को भी फेस किया। अब जबकि कोरोना वायरस की वबा अरूज पर है, फिर भी पुलिस स्टेशन समेत डीपी ऑफिस भी खुला है और रोजाना की बुनियाद पर लोगों के मसाइल हल करने का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। जेहलम में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अरशद ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन और मास्क की अफादियत से मुतालिक आगाही दी। ट्रैफिक पुलिस जेहलम के ज़रिए एहतमाम ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के जरिए कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से रोकने और एक जानलेवा खेल वन व्हीलिंग के बारे में आगाही फराहम की गई, जबकि बगैर मास्क के सफर करने वालों में भी डीएसपी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क तकसीम किए गए। लोधरा में मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए गए। तकरीब में एसओपीज का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया। नदीम पीरजादा की रिपोर्ट। लोधरा में मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 डीएसपी सैयद रिजवान शाह की क़यादत में अवामी खिदमात में पेश नजर आने लगी। मोटरवे पुलिस ने मुखैर हजरात के तावन से मुस्तहिक शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम करने का सिलसिला भी तेज कर दिया। मेहमान खुसूसी साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, सबने मिलकर ये इस तकरीब का इनेकाद किया। यहाँ जो मुस्तहिक लोग थे उनमें हेलमेट तकसीम किए गए और इन हेलमेट तकसीम करने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को उसकी हिफाजत करें। आज ये हेलमेट की तकसीम का मकसद लोगों को याद दहानी कराना था कि जब भी मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पे आएँ तो अपने हेलमेट को लाजिम करें, क्योंकि हमारे इस इलाके में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट मोटरसाइकिल सवारों के हो रहे हैं। मुस्तहिक शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम करने का मकसद शहरियों और दूसरों की जिंदगी को महफूज बनाना है। कैमरामैन टीम के हमरा नदीम अब्बास पीरजादा, नुमाइंदा सच न्यूज, लोधरा। यहां पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जनूबी पंजाब का सेहत अफजा मकाम फोर्ट मिनरो कुदरती हुस्न से मालामाल है, लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों पर लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से आने वाले सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनूबी पंजाब का मरी यानी कि फोर्ट मिनरो कुदरती हुस्न से माला माल है, जिसके बायस मुल्क भर से स्याह मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए फोर्ट मिनरो का रुख करते हैं। दुश्वार गुजार रास्ते और लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई दफा हादसात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन मकामी इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू 1112 का ऑफिस न होने की वजह से हादसात के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लैंड स्लाइडिंग की वजह से हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। मकामी लोगों ने
अपनी मदद आप के तहत लैंड स्लाइडिंग के नुकसानात से बचने के लिए रोड के दोनों अतराफ पत्थर तो रख दिए हैं, लेकिन शदीद लैंड स्लाइडिंग के दौरान कई दफा हादसात रूनुमा हो चुके हैं। हादसात वकूअ पजीर होने की सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 डेरा गाजी खान को फोर्ट मिनरू आते हुए घंटों लग जाते हैं, जिसके बायस तिब्बी इमदाद जल्दी न मिलने की वजह से कई कीमती जानों का ज़ियां हो चुका है। इलाका मकीनों और सियाहों की जानिब से रेस्क्यू 1122 का फोर्ट मिनरू में ऑफिस कैंप करने की अपील की गई। अली रजा हमदानी, सच टीवी, फोर्ट मिनरू, डेरा गाजी खान। जदीद टेक्नोलॉजी के बायस रिवायती खेल वक्त के साथ मादूम होने लगे। माजी में देहातों में खेले जाने वाले खेलों की जगह इंटरनेट और कंप्यूटर गेम्स ने ले ली। मजीद जानते हैं यासर नाइट की इस रिपोर्ट में। स्कूल के छुट्टियों के दिनों में ये खेल अपने अरूज पर होते थे। माएं घरों का काम काज और खाना पकाने में मसरूफ रहती और बच्चे अपना तमाम वक्त इन्हीं खेलों में मसरूफ रहते थे। खेलों के दौरान कुछ ऐसे बोल भी हुआ करते थे जिन्हें याद करके दोहराना जरूरी होता था। बच्चे खेल के साथ साथ इस खेल के मुतालिक बोल को भी याद किया करते थे। कोकड़ा छुपाकी में एक बच्चे दायरे की शक्ल में बैठ जाते थे। किसी को आगे पीछे देखने या इशारे करने की इजाजत नहीं होती थी। एक बच्चा कपड़े को बल देकर कोड़ा सा बना लेता और दायरे के पीछे घूमकर चक्कर लगाता था। ग्राम देहात और शहर की गलियों कूचों का बहुत मकबूल खेल था, जिसे मुख्तलिफ लड़कों पर मुश्तमिल 2 टीमें खेला करती थी। लड़कों की तादाद काफी होती थी। इस खेल की एक रबड़ की गेंद और मिट्टी के बर्तनों और मटके वगैरह के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते थे जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे जाते कि वो एक छोटा सा मीनार दिखाई देता था। इस खेल का आगाज यूं होता था कि कुछ फासले से गेंद के निशाने से इस मीनार को घिराया जाता था और फिर उसे दोबारा खड़ा किया जाता था। जब कोई खिलाड़ी मीनार बनाने की कोशिश करता था तो उसे मुखालिफ टीम के खिलाड़ी उस गेंद से शदीद ज़रब लगाता। जो टीम मीनार बना लेती थी वो जीत जाती थी। आंख मचोली शरारों से भरे इस खेल को घरेलू खेल का नाम भी दिया जा सकता है, जिसे घर के सभी बच्चे और बड़े एक साथ घर में खेल सकते थे। इस खेल का तरीकेकार ये होता था कि खेलने वाले अपने दरमियान में से एक फर्द को चुन लेते थे जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। उसे दीगर खिलाड़ियों में से किसी एक को पकड़ना होता था। देहात के पुरसकून माहौल में दीगर देसी खेल भी शौक से खेले जाते थे, मगर वक्त के साथ साथ ये खेल खत्म होते जा रहे हैं और इनकी जगह इंटरनेट, कंप्यूटर गेम्स और दीगर सोशल मीडिया ले रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। टोबा टेक्सिंग में सूरज का पारा हाई हुआ तो नौजवानों ने गर्मी को दूर भगाने के लिए ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान, लोग ट्यूबवेल्स में नहाने लगे? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में 11 लानिया लोड शेडिंग का जारी है और टोबा टेक्सिंग में अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो 45 सेंटीग्रेड है। काफ़ी ज़्यादा हबस है, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है। नौजवान जो हैं आज छुट्टी का रोज़ है, एक ट्यूबवेल के ऊपर आए हुए हैं और यहाँ पे मौज मस्ती भी कर रहे हैं। ठंडा ठार पानी है जिसको एंजॉय किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैंगो का दौर और खाने पीने का सामान जो है वो भी साथ लेके आए हैं। आज यहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं नौजवान और नहा भी रहे हैं। गर्मी को भगाने के लिए बहुत सारे नौजवान जो हैं हर छुट्टी के रोज़ यहाँ पे जमा होते हैं एक डेरे के ऊपर और यहाँ पे ये अपनी पिकनिक पार्टी जो है वो मनाते हैं। मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इससे पूछते हैं कि ये आज किस तरह का हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज टोबा टेक्सिंग का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री तकरीबन है और दोस्त सब इकट्ठे हुए हैं। हम गेट टुगेदर है, सारे दोस्त मैंगो पार्टी भी करेंगे, खाना शाना लेके आए हैं, खाना भी खाएंगे और ट्यूबवेल का पानी बहुत ठंडा है, इंजॉय कर रहे हैं गर्मी की और हबस की वजह से। तो घर में लोड शेडिंग भी बहुत उसके सताए हुए हम फिर सब दोस्त इकट्ठे होते हैं ट्यूबवेल पे इंजॉय करने के लिए। जी जैसा कि आपने नौजवान की बात, इनका ये कहना है कि गर्मी को भगाने के लिए ये छुट्टी के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। चूँकि वापडा की जानब से 11 लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यही वजह है कि छुट्टी के रोज़ नौजवान जो हैं या तो नहरों का रुख करते हैं या फिर ट्यूबवेल पर आकर पिकनिक पार्टी जो है वो बनाते हैं, जिससे गर्मी को भगाने के लिए नौजवान जो है इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं ताकि ये अपना जो टाइम है वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकें। जी गर्मियों का खास तोहफा गन्ने का रस इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और बहुत सी बीमारियों से बचाता है। समंदरी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गन्ने के जूस की मांग भी बढ़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज बत्ती। समंदरी में भी गर्मी का मौसम अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और इसकी रोकथाम के लिए हर शख्स किसी न किसी जतन में मसरूफ नजर आता है। गर्मी के तोड़ के लिए गन्ने के रस की भी मदद ली जा रही है और ये गन्ने का रस फरत और ताजगी बख्शने के हवाले से दीगर मशरूबात पर सबकत लिया नजर आता है। गर्मियों में ये जिस्म को ठंडा करता है तो सर्दियों में भी बगैर बर्फ के इसे पीना काफी फायदेमंद होता है।
गन्ने का रस लजीज और मीठा होने के साथ इंतहाई फायदेमंद और सेहत के लिए किसी दूसरे सुपर फूड से कम नहीं है। तिबी माहिरीन के मुताबिक गन्ने के रस यरकान, मोटापा और नज़ला जुकाम के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होता है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। तरक्की और तब्दीली से नाआशना और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात और रानाइयों से महरूम हजारों लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके पास घर है न शहरियत। उर्फ आम में उन्हें खाना बदोश कहते हैं। मुल्क भर की तरह इस तबके के कुछ अफराद कोट सुल्तान में भी खैमजन हैं। कई दहाइयों की तरक्की व तब्दीली से नाआशना और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात और आनाइयों से महरूम नाबलद हजारों लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके पास न घर है, न शहरियत और न ही शनाख्ती कार्ड। उर्फ आम में इन्हें खाना बदोश या पक्की वास कहते हैं। तपती धूप हो या टपटपाती सर्दी, सड़क किनारे या वीरान जगहों पर खुले आसमान तले खैमाजान होकर अपना बसेरा और ठिकाना बना लेते हैं और हर वक्त जगह छिन जाने के खौफ के साथ रोजी रोटी के लिए मुख्तलिफ जतन करते हैं। लेकिन कोरोना ऐसी वबाई अमराज हूँ या नागहानी आफात, इस तबका का सिलसिला रोजगार मफकूद हो जाता है जिसके बायस इनकी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो जाता है। रेलवे स्टेशन कोट सुल्तान के नजदीक खैमाजान झुग्गी नशीनों ने अपना दुखड़ा बयान करते हुए कहा, गरीब लोग कई मेहनती मजदूरी लोग कराया ले है, साड़ी न कोई मेहनत मजदूरी पे लगती है ना सब कई पासे वंजन पे लेना गाल किसी दे। अच्छा गरीब लोग हैं, साड़ी कोई इमदाद करो, तावन करो, साड़ी निके निके बच्चे अच्छा गरीब कुलियाबाद न मेहनत है न मजदूरी न साढ़े कुछ जमीन है न कोई मिल्क है। सा गरीब बेचारे साड़ी जी में दे निके निके बच्चे ओ दुख मरते न साहब दुख मरते कुलिया दे लुकर दे प्यों से साहब को निकलाने कोई नहीं देना। सा गरीब है को आज़ादी के 73 सालों के दौरान हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, लेकिन इन झुग्गी नशीनों की तकदीर न बदली। बेहिस्सी का ये आलम है कि ये तबका इंसानी हकूक की तंजीमों समेत हुकूमती अवाम की नजरों से मुकम्मल तौर पर ओझल है। खुले आसमान तले अपने अल्लाह के भरोसे पर बैठे ये खाना बदोश आज भी किसी मसीहा के मुंतजिर दिखाई देते हैं। कैमरामैन मलिक नदीम के साथ सदाकत अली खान, सच न्यूज, कोट सुल्तान लिया। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला के नवाही गांव में 9EB में एक खानदान ऐसा भी है कि जो न सिर्फ मुआशी बदहाली का शिकार है बल्कि अपने अकलौते बेटे के पांव का इलाज कराने से भी कासिर है। गरीब वालिदैन बेटे की जिंदगी बचाने के लिए हुकूमत और मुखय्यर हजरात की इमदाद के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। ये है आरिफ वाला के नवाही गांव 9EB का रहायशी गरीब मेहनतकश मोहम्मद इकबाल, जिसका अकलौता बेटा मोहम्मद आफ्ताब पांव की माजूरी के करीब पहुंच चुका है। अपने वालिदैन का पेट पालने की खातिर मजदूरी करते हुए आफ्ताब का पांव जरी मशीन ने कुचल दिया था, जिसकी वजह से वो मुनासिब इलाज न होने की वजह से चारपाई तक ही महदूद होकर रह गया है। मैं गरीब बंदा जी, मेरे पुत्र की लत्त छैलड़ च आ गई ते लखा रुपया डॉक्टर मांगते, किन्ने कोले गरीब बंदा मैं, एक टाइम की रोटी भी नहीं लभदी ते मेरे हुकूमत अगे अपील है इनका इलाज किया जाए। अपने लखते जिगर को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए लाखों रुपए दरकार हैं, मगर गुर्बत आड़े आ जाती है। घर में गुर्बत का आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। जो पूंजी सी ला चुके हैं ते वेखी ना जेड़े डॉक्टरां कोले जाने आ ते लखां पैसे मंगदे ने ते साडे कोले गुंजाइश कोनी कि साडे ते एक टाइम दी रोटी कोनी ते असीं बच्चे दा इलाज की करा सकदे। मेरा भाई सी को एक ओंदे शैल च आके लत्त खराब हो गई है ते सानू इनदी बहुत जरूरत हैगी है। सानू बहुत प्यारा है अपना भाई ते इसलिए साडी हुकूमत अगे अपील है कि इनदा इलाज करवाया जाए। गुर्बत की चक्की में पिसे इस गरीब वालिदैन की एक ही अपील है कि इनके अकलौते बेटे का इलाज करवाया जाए ताकि वो उनका सहारा बन सके। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। वजीर आजम के आबाई इलाके जिला मियांवारी के नवाज स्वांस के रिहायशी गरीब मजदूर की 6 साल की कमसिन बेटी बाजू के आर्जे में मुब्तला है। वालिदैन बेटी के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मियांवाली के नवाही इलाका सवास के रिहायशी मजदूर अजीजुल्ला खान की 6 साला मासूम बच्ची किंजा का बाजू गर्म पानी गिर जाने से जल गया। मासूम निगाहें साहिब दिल लोगों की राह तक रही हैं। ऑपरेशन इस्लामाबाद ना पिंडी इस्लामाबाद ना मैं आप एक गरीब जो बंदा मजदूर आदमिया लिहाजा मेरी बच्ची ना
सही तरीके ਨਾਲ इलाज कराया। मासूम किन्जा के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की खतीर रकम दरकार है। वालिद बेरोजगार है। किन्जा के अहले खाना ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और महकमा सेहत मियां वाली के आला अफसरान से इलाज मुआवजा में मुआवनत की अपील की है। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज मियां वाली। लोधरा की तहसील दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने जाली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की अद्वियात, केमिकल्स और पैकिंग करने वाली मशीन बरामद कर ली और फैक्ट्री को सील कर दिया। काजिम अब्बास की रिपोर्ट। स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस विंग की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन ने स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस विंग की टीम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंसूर उल हक, ड्रग इंस्पेक्टर जुबैर भट्ट और पुलिस नफरी के हमरा थाना जल्लाराय के इलाके मौजा डेसी में जैली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में जैली वेटरनरी अद्वियात तैयार करके मुल्क भर में सप्लाई की जाती थी। कार्रवाई के दौरान लाख रुपए मालियत की जैली वेटरनरी अद्वियात, लोड गाड़ी, जैली अद्वियात बनाने वाले केमिकल्स और पैकिंग करने वाली मशीनें भी बरामद हुई। जैली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले 6 मुलाजमीन को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने जैली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री को सील करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन का इस मौके पर कहना था कि यह जैली वेटरनरी अद्वियात मुल्क भर में सप्लाई की जा रही थी और जल्द ही फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंसूर उल हक का इस मौके पर कहना था कि जैली वेटरनरी अद्वियात तैयार करने वाले मुलजमान मार्केट से सैंपल लेते थे और फिर किसी भी दवाई की कॉपी तैयार करके मुल्क भर में सप्लाई करते थे। उन्होंने मजीद बताया कि बरामद होने वाली जैली अद्वियात की मालियत लाख रुपए बनती है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। कबीरवाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया और भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। पुलिस थाना सदर कबीरवाला ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मनशियात बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। इस मौका पर SHO हसन इकबाल का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में मनशियात बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एहतशाम अली की रिपोर्ट। DPO साहिवाल अमीर तैमूर बुजदार की हिदायत पर SDPO सिटी सर्कल मलक दाऊद की जेरे निगरानी SHO थाना गल्ला मंडी मियां आसिफ वट्टू ने अपनी तैनाती के पहले हफ्ते में ही दबंग कार्रवाई की। मुलजमान हुमायूं और मोहम्मद फयाज को पाबंदे सलासल कर दिया। SHO थाना गल्ला मंडी मियां आसिफ वट्टू ने कहा कि या तो जराइम पेशा अफराद अपने काले धंधे बंद कर दें या इलाका छोड़ जाएं, नहीं तो उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। SHO आसिफ वट्टू की इस कार्रवाई को DPO साहिवाल ने सराहा और शाबाश दी। मलिक इत्शाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। मुसलसल 5वां हफ्ता हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। हालिया हफ्ते महंगाई में 0.98% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आपको बताते चलें कि इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। जानते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान चौधरी, इदारा शुमारियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, 5वां हफ्ता है और 5वें हफ्ते मुसलसल जो है वो महंगाई में इजाफा जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका हुकूमत की जानब से। एक हफ्ते के दौरान 0.98% जो है वो महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हफ्तावार रिपोर्ट जो जारी किया इदारा शुमारियात ने उसके मुताबिक महंगाई की शरह जो है वो बढ़कर दोबारा से 11% की सतह जो है वो क्रॉस कर चुकी है और 11.02% जो है वो महंगाई की शरह हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो है वो 18 अशिया महंगी हुई हैं, 11 की कीमतों में कमी, जबकि 22 मसनूआत की कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम देखा गया है। सबसे ज्यादा कीमतें जो बढ़ी हैं वो टमाटर की बढ़ी हैं। 43% जो है वो टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। 1 किलो टमाटर जो है वो 29 रुपए फी किलो तक जो है उसकी कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से प्याज की कीमत में 10.6%, जबकि लाल मिर्च जो है उसकी कीमत में 6.25% जो है वो इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान अंडे 4%, आलू 3%, चीनी जो है वो 2.75% महंगी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो है वो मुर्गी के नर्ख भी 0.2% तक बढ़ गए थे। इसी दौरान जो है वो केला 5.22%, दाल मूंग 4% जो है वो सस्ती भी हुई है, जबकि आटा, घी, दाल, मसूर, माश, लहसुन और चावल की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।